provided sessions on Vaikranta Bhasma and Hirak Bhasma. Hirak Bhasma is regarded as Medya Sarvotkrishta Rasayan Mrutyunjaya in our classics. For this, we have an eminent speaker today, Vaidya Dilip Gadve sir. He is senior and eminent practitioner in Maharashtra. He is practicing for more than 35 years. He has done BAMS, MD, PhD in Ayurveda and BA, MA, MPhil in Sanskrit. He has worked as an editor and principal investigator in a literary research project, namely Ayurvediya Triskanda Kosh. He has done primary study of cancer in Ayurvedic perspective. He is principal Ayurvedic physician for cancer at Tiyak Maharashtra Vidyapit, also working as an Ayurvedic consultant at Dinanath Mangeshkar Hospital, Pune. He is visiting to various countries every year for giving lectures on Ayurveda. He has been bestowed with many awards. Some are late Vaidya Shivnath Sharma Award for Lakshan Kosh at the hands of the Vice President of India. With this brief introduction, I request sir to start his session. Sir, please. Let us start with the prayer first, and then I will just put remarks. Shankhan Chakran Jalakam Datatamrutaghtam Charudorvishchaturthi Sukshma Swachhatirudyam Shukaparivilasan Maulimam Bhojanetram Kalam Bodhojvalangam Katitatavilasat Charu Pitambaradhyam Vande Dhanvantarintam Nikhila Gadavana Praudhadavagnililam Praudhadavagnililam Brahmano Samarabdha Matre Yadyeshu Puritam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ayurvedaratam Vande Madhavakhyam Mahagurum Ayurvedamrutam Sarvam Shishvebhyo Yam Pradattavan Drashtajnani Drushtakarma Kritakarma Tathivacha Adhyapako Vishwakshreshto Mahan Samshodhakasthatha Gunairetaih Samuditaih Yatkaryam Pratanotisaha Samrutyartham hi karyasya vayandu prayatamahe Saraswatye namo yasyah prasadat punyakarmabhi Buddhidarpana sankrantam jagadatyakshamikshathe Atreyam pratamam vande ayurveda jagadgurum Ayurvedamrutam sarvam grihitva hi sureshwara Agniveshadikebhyo yat prechhatmi sattamaha Pratamam tantra kartaram agnivesham namamyaham शांति शांति शांति। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिरक भस्म इनके लीगल प्रैक्टिसेस इस प्रकार का है। तो सीधे विषय को शुरुआत करते हैं। हिरक भस्म जो है वो अभी बहुत सारे वैद्य प्रयोग में लाते हैं उनके प्रैक्टिस में, पर्टिकुलरली कैंसर के। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो नृसिंहाचार्य भाग्यवाड़ीकर, जो बहुत ही बुजुर्ग वैद्य रहे सोलापुर में, उन्होंने कॉलेज भी वहां पे खुलवाया था। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की कि कैंसर में इस प्रकार से हिरक भस्म का प्रयोग करना है, और उन्होंने खुद तो किया और बड़ी सफलता पाई। तो बहुत सारे लोग अभी इसमें जुड़े हुए इस प्रकार के हैं और हिरक भस्म का रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों का हिरक भस्म भी उपलब्ध है। टूथपेश्वर का है, उंजा फार्मेसी का है, यहाँ पुनर्वसु चिकित्सालय ने भी बनाया था, और कुछ वैद्य योगेश बेंडाले वगैरह इस प्रकार के लोग भी खुद का बनाते हैं। तो ये अवेलेबल है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
सिर्फ उसकी प्राइस एक अहम मुद्दा रहता है। तो अगर ओरिजिनल फॉर्म में उसका प्रयोग किया जाए तो ये काफी महंगा साबित हो सकता है। 10 मिलीग्राम का डोज बहुत सारे वैद्य देते हैं। जो मिलता है बाजार में वो 100 मिलीग्राम पैकिंग मिलता है, तो 10 दिन का ही डोज होता है। अभी तो मुझे प्राइस पता नहीं है, लेकिन 1000 के आसपास करीबन होगी इस प्रकार से। तो बट सूक्ष्मीकरण अगर उसका किया जाता है, मैं थोड़ा आगे उसके बारे में बताऊंगा। तो रिजल्ट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, रिजल्ट्स तो वही रहते हैं, लेकिन डोज बहुत कम हो जाता है और उतनी मात्रा में भी वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तरीका हो सकता है कि उसको हम प्रयोग में लाएं। तो हीरक के फलश्रुति में जो बताया गया है वो रसायन है, इतना ही बताया गया है। अभी हीरक ही क्यों, ये एक बात अहम मुद्दा है। और खास करके कैंसर में हीरक का प्रयोग क्यों करना है? तो ये ऐसा होता है कि कैंसर एक अनटाइमली मेजरेबल डेथ देने वाली बीमारी है। तो जो हम कैंसर के मरीज देखते हैं, तो अकाल मृत्यु ये एक बात और यातनामय मृत्यु ये दूसरी बात, ये दोनों दिखाई देते हैं कैंसर के बारे में। और खास करके कैंसर में जो वेदना होती है, दुख होता है, वो बहुत ही जोरदार इस प्रकार होता है। सहन करना रोगी के लिए मुश्किल होता है, उसको देखना इस प्रकार से तरफ से ये रिश्तेदारों के लिए भी एक मुसीबत वाली बात होती है। और खास करके अगर बच्चे इसमें बीमार होते हैं तो ये एक और मुश्किल सिचुएशन इस प्रकार की हो जाती है। मेरे पास जब 2-2.5 वर्ष का लड़का आया था तो मुझे लगा अरे बाप रे, इतनी कम उम्र में हो गया, लेकिन बाद में 2 महीने का बच्चा भी आया कैंसर का। और बूढ़े तो आते ही रहते हैं, 70, 80, 90 वाले बूढ़े भी आते रहते हैं। तो काफी मिजरेबल है, यातनामय मृत्यु है, अकाल मृत्यु है। और रसायन चिकित्सा जो है, मारोपायो शस्त्राणाम रसादीनाम रसायन, इसके प्रकार की इसकी व्याख्या की गई है। तो प्रशस्त रसादी धातुओं का निर्माण करने वाला जो है वो रसायन है। और दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम मया, ये रसायन की फलश्रुति चरकाचार्य ने बताई। तो पहली फलश्रुति दीर्घमायु इस प्रकार की। तो अनटाइमली डेथ के हिसाब से देखा जाए तो उसके विपरीत चिकित्सा वाला, उसके विपरीत कर्मों वाली ये चिकित्सा है। और आरोग्य तरुणम मया, इस प्रकार की भी बातें की गई है। तो रसायन चिकित्सा ये कैंसर में एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की। तो जो भी चिकित्सा करनी है वो रसायन कैसे हो इसके बारे में सोचना है। और विभिन्न रसायन द्रव्यों का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो हीरक भस्म जो है वो सुरक्षित है प्रयोग में लाने के लिए, उससे कोई एडवर्स इफेक्ट ऐसे नहीं होते। बल्ला तक भी एक जानी मानी दवा है कैंसर की, खास करके स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में बल्ला तक का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन फिर भी अगर बल्ला तक की किसी का एलर्जी है तो ये काफी मुसीबत वाली बात हो जाती है। और कैंसर को ट्रीट करना, उस एलर्जी को ट्रीट करना, ये दोनों साथ में होता है। और कभी कभी एलर्जी काफी गहरी होती है, काफी मुश्किल होती है ट्रीट करना इस प्रकार से। मेरे पास एक इसोफेजियल कैंसर का केस था, स्क्वामस सेल इस प्रकार का ही था। और उसमें भी मैंने भला तक सिद्ध घृत का प्रयोग किया था। पेशेंट तो केवल दूध के ऊपर, पेशेंट केवल दूध के ऊपर ही था। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ और 1 महीने के बाद पूरे बदन पे रैश आ गया। भला तक तो बंद करना पड़ा, लेकिन फिर भी रैश कम नहीं हो रहा था। ये अभी इसमें कोरिएंडर का जूस ये एंटीडोट के रूप में देते हैं, नारियल देते हैं, वो सब दिया, उसका फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने ग्रंथों से ढूंढने की कोशिश की बल्ला तक के लिए,
तो विशेष स्रोत में इसका पल्लातक अभिगच्छते वर्णन है और उसकी चिकित्सा में विशेष की यही चिकित्सा से बताई है। तो ये फैल रहा था, इसलिए मैंने विसर्ग वाली दवा ढूंढने की कोशिश किया और उसमें पटोलादिकमेव पटोलनी चंद्र ये जो 15वें अध्याय में है। तो फिर उसके काढ़े का प्रयोग करने के बाद ये शांत हो गया, बल्लातक की एलर्जी शांत हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बल्लातक अच्छी दवा है। कफजो नस रोगोस्ति भगवन्तोस्ति कश्चन यन्द बल्लातक अन्यत् शीघ्रं प्रकार से बताया गया है। फिर भी वहां से म्यूट करें, क्या बोल दिया? वहां से म्यूट करें, म्यूट कर देंगे। तो बल्लातक एक अच्छी दवा है, फिर भी उसकी एलर्जी हो सकती है, तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात हो जाती है। तो हीरक उस सिलसिले में बहुत ही अच्छा है और कोई दुष्परिणाम नहीं रहते हैं। अब ये मुद्दा उठता है कि अगर रसायन ये मेन चिकित्सा है कैंसर में, तो बहुत सारे रसायन है, हीरक का ठीक क्यों जिक्र किया गया? और भागीवाड़ी करने इसके बारे में कैसे सोचा ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि ये बात कभी स्पष्ट रूप से आई नहीं सामने। लेकिन मैं बहुत सारे रसायन द्रव्यों का प्रयोग करता रहता हूँ, खास करके केवल दुग्धाहार का प्रयोग करता है। क्षीरकृताभ्यासो रसायनानाम ये अग्र संग्रह है। तो मेरे गुरु कोलटकर सर, हमारे पास एक 1985 में पहली केस आई थी कैंसर की। मैं बिल्कुल नया नया था, प्रैक्टिशनर था, 80 में प्रैक्टिस शुरू की थी। और जो कार्सिनोमा था, रॉल बेलाडस से शुरुआत हुई थी, लिवर और कोलन में स्प्रेड हुआ था। सोनोग्राफी उस समय नई टेक्निक थी, तो सोनोग्राफी की गई तो उसमें पता चला कि ट्यूमर है। तो ऑपरेट करने के लिए ओपन किया, ओपन करने पर पता चला कि बहुत ही वैस्कुलर है और लिवर और कोलन में स्प्रेड हुआ है। तो डॉक्टर ने सोचा कि कुछ करना है पॉसिबल है नहीं, सुचर बैक कर दिया, विषय दे दिया पेशेंट को और बताया कि 15 दिन का ही आयु है, अगर आपको कोशिश करनी है तो आयुर्वेद में ट्राई करो। तो उनका एक रिश्तेदार मेरा छात्र था, तो उसके जरिए मां मुझ तक पहुंच गए। मैंने कहा कि ठीक है, कोशिश तो करेंगे, और कोलटकर सर से भी सलाह ले ली इस प्रकार से। तो केवल दूध पे रखने का उसमें निश्चय किया, गिरेपस्म का आरंभ किया और पेशेंट सुधरते गए, 33 बरस जिंदा रहे इसके बाद। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से दूध का प्रचलन शुरू हुआ। अभी जो भी मरीज मेरे पास आते हैं, मैं केवल दूध का आग्रह करता हूँ। जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना देसी गाय का दूध लेना है, ये बताता हूँ। अब ये बताना बहुत जरूरी है, देसी गाय का ही दूध देना है इस प्रकार से। और क्षीरकृताभ्यास और रसायनानाम, ये जो बात बताई गई है कि इसमें ये अहम है, क्षीरकृताभ्यास रसायन में श्रेष्ठ है। और बाकी भी रसायनों का मैं प्रयोग करता हूँ, खास करके च्यवनप्राश का प्रयोग करता हूँ। वर्तमान पिपले रसायन मैंने 3 से 30, 6 से 60, 10 से 100 ये सभी तरीके अपनाए हैं। खास करके लिवर कैंसर और लंग कैंसर में ये पिपले रसायन, वर्तमान पिपले रसायन कप प्राधान्य अगर है तो बहुत अच्छा काम करता है। रसायन चूर्ण एक अहम है। चूर्णम शतमृतामृतानाम, ये बहुत सिंपल पार्ट है कि गोक्षुर, अमलकी और गुरुची, इतने ही 3 द्रव्य है, आसानी से उपलब्ध है, काफी सस्ते हैं। तो इसमें शांत विकार दुखा ये फलश्रुति बताई गई है। समाशतम जीवति कृष्ण केशव,
तो विकार का दुख शांत जिसका हो गया है, इस प्रकार से 100 बरस कृष्ण केश होकर जीता है, ऐसा बताया गया। तो मेरा ध्यान इसके ऊपर आकृष्ट हुआ और मैं रसायन चूर्ण का सभी मरीजों में प्रयोग करता हूँ। मैंने उसको 3 भावनाएं दी है उसी काढ़े से, और उसमें थोड़ा हीरक वगैरह भी डाला है। तो इस प्रकार से मैं काफी रसायन द्रव्यों का प्रयोग करता रहता हूँ, और जो भी दवा सोचनी है वो रसायन हो, चाहे गुड़ीची हो, चाहे शतावरी हो, चाहे और कहीं अभी शालीपर्णी एक नई सामने आई कि जो रसायन है और त्रिदोषाशामक है। तो अभी कोविड-19 की सिचुएशन में किसी ने एक मुझे सुझाव दिया कि इसकी कैप्सूल मिल रही है शालीपर्णी की, गांजूसवीर इस नाम से, और उसकी एंटीवायरल एक्टिविटी इन विट्रो प्रूव हुई थी। तो शालीपर्णी के गुणधर्म मैंने देखे तो ये रसायन है और त्रिदोषगम है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, प्रयोग कर सकते हैं इसका। तो अभी मैं उसका भी प्रयोग कर रहा हूँ इस प्रकार से। और एंटीवायरल एक्टिविटी जो देखी गई थी वो भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो उसमें कर सकते हैं। मैंने 1-2 मरीजों में भी इसके बारे में ट्राई किया है। तो जो भी दवाएं हमें प्रयोग में लानी है वो इस प्रकार से त्रिदोष रसायन इस प्रकार से होनी चाहिए। तो फिर इतने सारे रसायन द्रव्य और रसायन हमारा मुख्य औषध है, मुख्य उपचार है, तो हीरक ही क्यों, ये प्रश्न सवाल फिर भी उठता है। तो उसके लिए कैंसर का मूल कारण जो है वो समझना बहुत जरूरी है। तो फिर हम हीरक का इसमें क्या रोल है ये समझ सकेंगे। तो मूल कारण जो है वो खेती में है कैंसर का। वैसे कारण अनेक है और लोग बताते भी रहते हैं इस प्रकार से, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कैंसर फैल रहा है पूरे विश्व भर में, तो कोई कॉमन कॉज होना चाहिए। एडिक्शंस वगैरह जो कॉजेस है वो कुछ ही लोगों में पाई जाने वाली इस प्रकार की कॉजेस है। शुरू में तो ऐसा था कि बहुत सारे मरीज ये एडिक्शन वाले होते थे, अब तो ये परिस्थिति नहीं रही। अब बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको कभी एडिक्शन नहीं थी, कभी जंक फूड फास्ट फूड खाया नहीं, होटल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, रोजाना घर का खाना खा रहे हैं, फिर भी कैंसर हो इस प्रकार। अब आश्चर्य की बात है कि जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने दुर्दैव मिसफॉर्चून ये 67% लोगों में कैंसर का कारण डिक्लेयर है। तो बड़ी हंसी की बात है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट, जो नामांकित इंस्टीट्यूट इस प्रकार की है। हमारे शास्त्र में दैवे पुरुष कार्य स्थित बलाबलम दैवदार विपरीत चेतना, ये बात है, दैव एक कारण होता है, लेकिन 67% में दैव एक कारण होगा ये काफी मुश्किल इस प्रकार के। तो हम किसी बहुत ही कॉमन चीज को मिस कर रहे हैं, और वो है हमारी खेती की पद्धति। हरित क्रांति और धवल क्रांति जैसे हुई। धवल क्रांति के बारे में जर्सी करण किया गया गायों का, और उसमें एक डेविल इन द मिल्क नाम की एक डॉक्टर गुडफोर्ड, जो न्यूजीलैंड का डॉक्टर है, उनकी एक किताब पब्लिश हुई है, अमेज़न पर उपलब्ध है। वो एलोपैथी के साइंटिफिक रिसर्च के जरिए किया हुआ रिसर्च इस प्रकार का है, और उससे खास करके ये A1 मिल्क, जो जर्सी गाय का दूध है, वो जुवेनाइल डायबिटीज, ऑटिज्म और कुछ हद तक कैंसर, इसका कारण इस प्रकार का बताया गया। तो दूध का क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन क्वालिटी कुछ नहीं रही, बल्कि क्वालिटी पूरी बिगड़ गई, और इस प्रकार से बीमारियां उस A1 मिल्क से शुरू हुई। दूसरी जगह जो हमारी फसल है, चाहे चावल हो, गेहूं हो, दाल हो, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है,
इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जैसे काऊ में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वहां पे संकर हो गया। और सीड कंपनीज काफी प्रचलन में आई, विदेश में तो प्रचलन में थी, अभी भारत में भी काफी प्रचलन है। और इन्होंने क्या किया कि क्वालिटी अच्छी होनी है या फिर क्वांटिटी बढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह, इस दृष्टि से ये संकर आरंभ किया। और ये करते समय जो फसल आएगी उसमें से जो बीज निकलेगा ये इनफर्टाइल हो, ऐसा कर दिया कि आपको उसमें से बीज नहीं मिलेगा, बीज आपको हर बरस कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। तो ये जीन से खिलवाड़ है कि जो बीज निर्माण करने वाले जीन्स है उनमें इस प्रकार का उनका निर्बीजीकरण किया जाए कि उससे आगे जो फसल आएगी वो निर्बीज रहेगी, दिखाई देगा तो बीज तो रहेगा, लेकिन कुछ फसल उसमें से उगेगी नहीं, आपको हर साल ये खरीदना ही पड़ेगा इस प्रकार से। अभी एक बात समझो कि पुनरुत्पादन ये किसी भी सजीव के लिए एक अहम कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि उसकी वंश परंपरा अगर खंडित हो गई, ब्रेक हो गई, तो फिर आगे कैसा होगा, वो नष्ट हो जाएगी स्पीसीज। और इसलिए जिसका इस प्रकार के शुक्र धातु का हनन किया गया है कि वो निर्बीज बना दिया है उसका, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पर उसका क्या परिणाम होगा, जो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, मनुष्य प्राणी या फिर हमारे जो पालतू एनिमल्स प्राणी जो है, गाय बकरी वगैरह इस प्रकार से, उनमें अगर ये निर्बीज सीड वाला धान या बाकी जो चीजें हैं वो प्रयोग में हम लाते हैं, तो वो कैसा होगा फिर आगे। तो इसलिए हमारे ऊपर इसका कैसा परिणाम है ये सोचना जरूरी है। और मेरा कहना क्या है कि ये शुक्रवास की पुष्टि करने वाला इस प्रकार से है, ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस लाएंगे बीज में, और वो कैंसर का मूल कारण इस प्रकार का। अब उसको अपनी खुद की प्रतिकारक क्षमता नहीं रही उस क्रॉप को, और इसलिए आसानी से रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो वो टालने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना है। कोई बीमारी है नहीं तो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स प्रयोग में लाने हैं, और फिर उसकी मात्रा कितनी रखनी है, क्या रखनी है, इसके बारे में कोई नियम कायदे कानून इस प्रकार से ज्यादा बने नहीं। विदेशों में अभी बने हैं, भारत में इतना ज्यादा प्रचलन होता है इसका कि हम जहरीला ही खाना खाते हैं, ये तो साक्षात जहर है इस प्रकार से। ये बीच में जो आमिर खान के एपिसोड हुए थे सत्यमेव जयते, इसमें एक एपिसोड इस प्रकार के खेती के ऊपर भी था, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह के बारे में। तो कहने का तात्पर्य वहां केरल में एक पर्टिकुलर एरिया में एंडोक्सिन 18 बरस तक उसका प्रयोग किया गया, और उसमें किस प्रकार से बीमारियां उत्पन्न हुई ये सब इसमें दिखाया। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स इनका प्रयोग जो शुरू हुआ, हमारा खाना नैसर्गिक नहीं रहा, अनैसर्गिक हो गया। जो केमिकल्स कभी भी हमारे खाने का हिस्सा नहीं थे वो खाने में आने लगे। तो इससे दो तरीके का नुकसान हुआ है कि एक तो लॉस ऑफ सीड बैंक्स, किसान के हाथ से बीज जो है वो निकल गए। अभी कुछ प्रयास हो रहे हैं कि अमरावती में सुभाष पालेकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ राही बाई करके एक है, उसके साथ बहुत बड़ी सीड बैंक है देसी बियानों के बीजों। तो अभी फिर से प्रचलन में आ रहे हैं ये देसी सीड्स इस प्रकार से। और फिर ये केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के जरिए
जो जमीन का नेचुरल ये उस फर्टिलाइजर्स होते थे, काउडन वगैरह इस प्रकार से, वो सब चले गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स आ गए, तो उसकी उपजाऊ वृद्धि ही कम हो गई और जो सभी जमीन है वो बिगड़ गई। अब ऐसे ही करते रहेंगे तो ये कुछ भी आगे होने वाला नहीं है, आगे खेती होगी ही नहीं। तो हमें निश्चय पूर्वक नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा, कम से कम ऑर्गेनिक खेती की तरफ तो मुड़ना पड़ेगा सरकार से। So the fertility of the soil is in danger now. This has led to शुक्र दृष्टि and even being leading further to the widespread of cancer. तो इससे शुक्र दृष्टि हो गई। अभी ग्रंथों में जो शुक्र दृष्टि वर्णित है कि दुष्ट शुक्र दुष्ट अर्थ इस प्रकार के वर्णन किए गए हैं, 8 प्रकार बताए गए हैं इस प्रकार से, उसके लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं। तो शुक्र भी दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते धर्म, इस प्रकार के भी सूत्र है। और खास करके हेरिडिटी की जो डिसीजेस है इसमें इसका एक अहम महत्व होता है। अभी इस स्थिति से अगर हमें बाहर निकलना है तो मैंने सोचा कि शुक्र शोधन गण इसके लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। और फिर मैंने शुक्र शोधन गणों के द्रव्यों का हर कैंसर मरीज में आरंभ कर दिया, उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो अभी कुछ वैद्य सभी शुक्र शोधन गण को इकट्ठा करके बाजार में अवेलेबल भी है उसका प्रयोग करते हैं। मैंने तो शुरू में ऐसा सोचा था कि मैं इंडिविजुअल बेस पर इसका प्रयोग करूंगा और कटफल और समुद्र पे ये सामान्य रूप से सभी में प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से आज सुबह का चरका लेक्चर हुआ था, उसमें समुद्र पेन के बारे में बात हुई थी। और शोणितपेन प्रभाव फुफ्फुसा, जो फुफ्फुस जो है वो शोणितपेन प्रभाव है। और पेन की निर्मिति क्यों होती है? सागर में ये जो तरंग उठते हैं वो क्यों उठते हैं? तो एक कारण उसका है कि पृथ्वी की गति है सूर्य के गिर्द फिरने की, अपने गिर्द फिरने की, चंद्र की गति है पृथ्वी के गिर्द गिर्द फिरने की, और फिर इससे एक शो होता है जलाशय का, और सागर में ये हाई टाइड लो टाइड इस प्रकार की होती है, भरती होती है कहते हैं उसको। और फिर ये एक जब प्रकार का मंथन है और मंथन के जरिए फिनोत्पत्ति होती रहती है। तो मैंने सोचा था कि ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और रक्त के हिसाब से ये शोणितपेन समुद्र में ये जो द्रव्य है शुक्र में उसका प्रयोग बहुत सारे लोग में करेंगे। वैसे लंग कैंसर है तो करते ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाकी कैंसर्स में भी करते हैं। और कटफल वेदना शमन गण में भी है, तो ये दूसरा उसका संधान ये भी है, ये भी एक उसका है। तो कटफल का काफी प्रयोग करता रहता हूँ। फिर कुछ लोग जो मैं पाषाण वेद का प्रयोग करता हूँ जहाँ ग्रंथि वेदन की अपेक्षा है। ईश्वर का या कुपिलाक्ष जो है वो वातावृत इन दोनों के हिसाब से अच्छा है। तो शीर जो है वो पित्त शामक अच्छा है। तो अवस्थाएं देखकर शुक्र शोधन गण में से प्रयोग कर सकते हैं। अभी सुबह व्याख्यान में थोड़ा सा और पुष्ट का भी प्रयोग कर सकेंगे, सुगंधित द्रव्य है तो उसको भी इस्तेमाल में लाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर शुक्र दुष्टि है तो शुक्र शोधन गण का प्रयोग बलिभांति हो सकता है। और उसी के सिलसिले में हीरक भस्म भी शुक्र के हिसाब से प्रयोग में लाया जा सकता।
तो मेरा अभी जो ट्रीटमेंट का मुख्य प्रिंसिपल है वो हिरक भस्म, शुभ्रशोधन रंग के द्रव्य और धातु पाचक। अभी अवयवों के कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, लिवर कैंसर है, टंग कैंसर है, कोलन कैंसर है, वगैरह वगैरह। अब जिन अवयवों के बारे में ग्रंथों में उनका निर्माण कैसे होता है ये बताया गया है। शुभ्रशोणितमांसानां साराज्योपहृजयते, शोणितपेन प्रभाव पुंसा वगैरह। वासुदेवश्रेष्ठश्चापि अप्रसाद परो मता तम पच्यमानं पित्तेन वायुश्चाप्येन धावति तत्त्वस्य अंतराणि जायन्ते। तो ये जो बातें हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए उसके जो आधारभूत धातु है जिनसे वो बने हैं अवयव, उस धातु पाचकों का प्रयोग करेंगे जो हमारे यहाँ प्रचलन काफी है, रसपाचक पाचक वगैरह इस प्रकार से। कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटिकरोहिणी पटोलम सारिवामस्तम पाठा कटिकरोहिणी वगैरह जो ज्वर चिकित्सा में विषम ज्वर के लिए जो 5 काढ़े आए हैं उनको रसपाचक रक्तपाचक इस प्रकार से कहा जाता है और उनका काफी प्रयोग महाराष्ट्र में वैद्य करते हैं। शुरुआत बायावर से हुई, वेणुमाधव शास्त्री जोशी उनके छात्र रहे और फिर अण्णा करमर कोलटकर वगैरह ये सब वेणुमाधव शास्त्री के छात्र रहे। मैं भी उनका एक छात्र रहा हूँ। तो धातु पाचकों का इस प्रकार से प्रयोग करना ये एक आम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। दूसरा एक ज्योतिष का एस्पेक्ट इसमें है, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि ये अगर अपने जन्मपत्री में शुक्र अच्छा नहीं है, उसके ऊपर कुछ पीड़ा है, दुष्टि है उसकी इस प्रकार से, तो हीरा पहनने के लिए कहते हैं और इससे काम भी होता है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है ये शुक्र ग्रह के बारे में है वास्तव में, लेकिन ये शुक्र ग्रह और शुक्र धातु इनका संबंध है। तो शायद इसलिए रसायनों में हीरा ये प्रधान इस प्रकार का रहेगा कैंसर के लिए प्रयोग में लाने के लिए। जहां जहां शुक्र दृष्टि है वहां सभी जगह हम हीरक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं और ये शुक्र से जुड़ा हुआ है इसलिए, और कैंसर की शुरुआत शुक्र दृष्टि से हुई है तो ये समझ लेना चाहिए। तो मैं अभी जो करता हूँ वो हर डोज में हीरक भस्म डालता हूँ। सुबह या शाम दोपहर रात 4 प्रकार की दवाइयां दी जाती है इसमें अभी। तो हर पुड़ी में हीरक भस्म बहुत कम मात्रा में सही लेकिन होता है। अभी ये अननेचुरल म्यूटेशंस जो खेती में हुए हैं, नेचुरल म्यूटेशंस भी होते रहते हैं लेकिन वो दुष्परिणाम करने वाले नहीं होते हैं क्योंकि वो नेचुरल। मॉन्सेंटो जैसी कंपनी गेहूं का इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है कि दूसरा कोई गेहूं अमेरिका में उगाया ही नहीं जा सकता। उन्होंने पेटेंट करके रखा है और किसी दूसरे को करने को देते ही नहीं है इस प्रकार से। तो अननेचुरल म्यूटेशंस ये एक आम मुद्दा है। अभी कहते हैं कि सभी लोगों में ऑन्कोजीन्स है, कैंसर के जीन्स है, और जब कभी इसको सपोर्ट मिल जाता है, हेरिडिटी से है, एडिक्शन से है, डेली लाइफस्टाइल से है, जंक फूड फास्ट फूड से है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से है, तो फिर कैंसर की प्रोसेस शुरू होती है। और एक ऐसा भी मानना है कि हर व्यक्ति के आयुष में 3 बार एक्सीडेंट होता है कैंसर। कैंसर ट्रिगर होता है अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको रोका जाता है, अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो कैंसर व्यक्त हो जाता है। तो इम्यूनिटी इज गुड, द पर्सन मे नॉट सफर कैंसर। एक्सीडेंट हो गया लेकिन हुआ नहीं उसके आगे कुछ, लेकिन कुछ व्यक्तियों में तो तुरंत इस प्रकार का हो जाएगा अगर इम्यूनिटी लो है तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इम्यूनिटी अभी एक
महत्वपूर्ण भाव है, खास करके अभी कोविड-19 की सिचुएशन में। डेल्टा प्लस आ गया, अभी नया वायरस आ रहा है। तो ऐसा कितने वायरस आते रहेंगे, म्यूटेशंस होते रहेंगे, ओमिक्रॉन। तो कितने वायरस आते रहेंगे, कितनी म्यूटेशंस होती रहेंगी, और कैसे इससे पाला पड़ेगा। तो वैक्सीन ये उसका सही जवाब है ही नहीं। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना यही सही जवाब है, और वो केवल इस प्रकार से कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में भी है ऐसा नहीं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है उनके बारे में भी वही सही तरीका इस प्रकार। और दूसरी बात ऐसी है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये एलोपैथी का भी प्रिंसिपल है कैंसर को ट्रीट करने का, और सर्जरी केमो रेडिएशन ये उसके हथियार है। केमोथेरेपी देते रहते हैं और एक तात्कालिक थोड़ा सा लाभ दिखता है कैंसर में, ट्यूमर कम हो गया, मार्कर्स कम हो गए इस प्रकार से। फिर भी उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कैंसर फिर से उभर आता है, फिर सेकंड लाइन ऑफ केमो, थर्ड लाइन ऑफ केमो, इस सिलसिला चलता ही रहता है। तो मेरे पास काफी मरीज इस प्रकार के हैं जिन्हें 20, 25, 30, 40 बार केमोथेरेपी ली है इस प्रकार से। अब देने के लायक कुछ नहीं रहा, सहने के लायक कुछ नहीं रहा, इसलिए हमारे पास है। तो ये बात ही नहीं है, एक विशेष सर्कल है, इसमें टैप हो जाता है कि कैंसर, रिकरेंस ऑफ कैंसर, केमो रेडिएशन, फिर लॉस ऑफ इम्यूनिटी, अगेन रिकरेंस ऑफ कैंसर, ये बात सिलसिला चलता रहता है। तो हमें अगर प्राइमरी या सेकेंडरी स्तर पर कैंसर को रोकना है तो इम्यूनिटी बढ़ाना यही सबसे बड़ा कारीगर होगा। तो अगर हम लाभोपायो ही शस्त्राणाम रसादीनाम रसायनम, ये अगर बात है तो प्रशस्त धातुओं का निर्माण करने के लिए रसायन जैसा कुछ भी मेडिसिन दूसरा नहीं है। तो उसमें अगर हम हीरक भस्म का प्रयोग करते रहते हैं तो एक अहम मुद्दा रहेगा कि प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज पर हम कैंसर को रोक सकेंगे। अभी काफी मरीज आते हैं कि जो 40, 50, 60 बरस के हैं, उनके लड़के लड़कियां हैं, पोते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। खास करके ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर में तो अगली वाली पीढ़ी में कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो उनको कैंसर होने से कैसे रोके उनमें, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। तो एक तो लाइफस्टाइल पूरी बदलनी है, जो भी खाना खाना है वो नैसर्गिक खाना है और कम से कम ऑर्गेनिक खाना है। नियमित रूप से योग, व्यायाम ये सब करना है, देसी गाय का ही दूध लेना है, और प्रॉपर स्वस्थवृत्त का जो हमारा निर्देश है वो पूरी तरीके से करना है। ये अगर हो जाए तो बात बनेगी कि आपकी इम्यूनिटी बरकरार है और आपको कैंसर न हो। और दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, कुछ मरीज ऐसे आते हैं, अभी बहुत कम है ये लोग कि एलोपैथी की पूरी ट्रीटमेंट होगी, डिसीज फ्री इस प्रकार का स्टेज आ गया। अब ये डिसीज फ्री इंटरवल है या सचमुच रोग मुक्ति मिली है, ये तो बाद में ही पता चलता है। लेकिन एलोपैथी के पास कोई तत्वज्ञान ही नहीं है उसके बारे में, फिर से दोहराए नहीं, इस प्रकार से केवल परीक्षण करते रहे ना, अगर हो जाता है तो फिर से केमो रेडिएशन यही करते रहते। तो हम इसमें हीरक भस्म वगैरह इस प्रकार का प्रयोग करके इम्यूनिटी बढ़ा के उसको रोकने की चेष्टा जरूर कर सकते हैं। तो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन के लिए भी ये अच्छा है। वैसे मैं देसी गाय का दूध, नैसर्गिक खाद्य, नैसर्गिक अन्नपान ये सब बताता रहता हूँ, योग और व्यायाम के बारे में भी बताता रहता हूँ, और पंचकर्म का भी एक अहम रोल है इसमें। ये बीच वाली स्टेज में कैंसर में, एडवांस स्टेज में पंचकर्म पॉसिबल नहीं होता ज्यादा, शोधन की प्रक्रिया नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा ये जलों का उच्चारण करते हैं और मात्रा बस्ती वगैरह देते हैं, जो शोधन नहीं है वास्तव। लेकिन डिसीज फ्री स्टेट में हम शोधन जरूर कर सकते हैं, पंचकर्म करवा सकते। तो ये उसका एक अहम रोल इस प्रकार का रहेगा। और फिर कैंसर दोहराने की
पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी और अच्छी तरीके से हमें कैंसर से मुक्ति हम पा सकते हैं. Now this concept can be used in other diseases with low immunity like TB, AIDS, etc. तो इम्यूनिटी जिनमें कम है, रसायन करना है, उन सभी में हीरक भस्म का प्रयोग किया जा सकता है. मेरे पास एक फुल ब्लोन एड्स का पेशेंट था. ज्वर था, कास था, अतिसार भी था, दौर्बल्य था और ये सब देखने के बाद मैंने स्वर्णमालिनी वसंत और हीरक भस्म सितोपलादेशों में इसका प्रयोग किया था. काफी सुधर गया. सभी लक्षण नष्ट हो गए, वजन बढ़ गया, काम पे ज्वाइन हो गया. तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इस प्रकार का रिजल्ट मिला था. ये दूसरे तरीके से भी ये एक अच्छी केस है क्योंकि बाद में वो फिर से बिगड़ने लगा 6 महीने के बाद और फिर काफी कोशिश की तो भी कुछ फायदा नहीं हुआ. 1-2 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई. यंग था, 25 वर्ष की उम्र थी. तो ये केस सातारा में थी. 2-3 बरस के बाद मैं एक बार सातारा गया था तो उसके पिता सामने आ गए. मैंने उनसे कहा कि मुझे मालूम नहीं, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था लेकिन फिर बाद में क्या हुआ. तो उन्होंने कहा नहीं, वो एड्स से नहीं मरा, वो केवल बीती से मरा. तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा. तो बोले नहीं, ऐसा है कि हम जब आपके पास आए थे तो हमें बताया गया था कि 2 महीने का ही लाइफ है, उससे ज्यादा लाइफ. फिर भी आपकी दवा से 6 महीने अच्छे निकल गए, वजन बढ़ गया, सभी लक्षण निकल गए. फिर भी डॉक्टर ने बता के रखा था नहीं 2 महीने का ही लाइफ है, 2 महीने का ही लाइफ है इसके पास. और उसको कुछ थोड़ा बुखार आ गया तो उसने सोच लिया कि नहीं अब डिसीज मुझे मार लेगा और उसी प्रकार से हुआ. तो मुझे भी एक सबक मिली कि ये इस प्रकार से भी लोग सोचते हैं तो ये गलत से भी उनके मन से निकालना ये भी जरूरी है. और एक दूसरी पॉट स्पाइन की केस थी और बुखार आता था. टिकटी दी गई थी, फायदा नहीं हुआ था, रेलवे में गायब था. और फिर उसको क्लरिकल जॉब में लगा दिया उन्होंने क्योंकि ये मालगाड़ी पर था और वो धक्के सहन नहीं कर सकता था. फिर इस अवस्था में मेरे पास आया. उसमें रेकेटी बंद होने वाली थी, 8-9 महीने हो चुके थे इस प्रकार से. फिर भी पेन बहुत था, बुखार भी आ रहा था. हाँ, बुखार उस समय में बुखार कंट्रोल में हुआ था. जैसे एकेटी बंद हुई, हमारी दवा शुरू कर दी. एकेटी जैसे बंद हुई वैसे बुखार फिर चढ़ने लगा. 103-104 बुखार जाने लगा. तो मैंने फिर से हीरक भस्म का प्रयोग किया उस मरीज में और वो देने के तुरंत बाद बुखार कम हो गया, पेन भी कम हो गया. फिर बस्ती वगैरह दिए और वो फिर से काम पर ज्वाइन हो सका. अभी पॉट स्पाइन में इतने अच्छे रिजल्ट्स एलोपैथी में इसमें आते नहीं है. वैसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में भी एलोपैथी में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, केवल पल्मोनरी कॉक्स के लिए ही एकेटी के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. तो इन सभी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. एड्स के मरीज जो है वो अभी टीबी से ही मरते हैं. तो इन सभी में हम इसका जरूर प्रयोग कर सकते हैं. हीरक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, उसका अच्छा नतीजा आता है. तो हीरक भस्म बहुत सारे रोगों में जिनमें लो इम्यूनिटी है हम प्रयोग में ला सकते हैं. अभी ये मैंने चंद उदाहरण इसमें बताए. लेकिन किसी भी कंडीशन में, किसी भी रोग में अगर इम्यूनिटी बहुत कम है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं. अभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट बढ़ रहे हैं और अभी मालूम नहीं है वैक्सीनेशन का जो चक्र चल रहा है कोविड-19 का, अगले 4-5 वर्ष में ऑटोइम्यून के केसेस बहुत बढ़ जाएंगे.
क्योंकि जो एंटीबॉडीज निर्माण होगी वो हमने कृत्रिम वृत्ति से निर्माण की गई है, और अगर सचमुच कोविड नहीं आता तो ये अपने सेल्स के खिलाफ लड़ना शुरू करेगी। तो ये पॉसिबल है काफी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें रसायन चिकित्सा करती रहनी चाहिए। ये एक आम मुद्दा सरकार का रहेगा। अभी एक दूसरा मुद्दा है हीरक के बारे में कि कॉस्ट उसकी ज्यादा है इस प्रकार से। तो मैं होम्योपैथिक के पद्धति से 6-6 करके प्रयोग में लाता हूँ सभी रसशास्त्र की मेडिसिन, केवल यही नहीं। अभी ऐसा हुआ है कि लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, खास करके नाग वस्त्र जो है वो जिन दवाइयों में है, सोरन गुपति हो, गर्भपाल रस हो, तो अगर दवा अच्छी तरीके से बनी नहीं है और संयोग से किसी को उसके साइड इफेक्ट्स हो गए तो वो आयुर्वेद के लिए भी बदनामी करने वाला उस प्रकार का है। तो ये सब बातें जानकर एक हिस्सा दूध द्रव्य लेने का, हीरक भस्म है तो वो लेने का, 9 हिस्से उसमें मैं तो ग्लूकोज डाल रहा हूँ, कुछ मिल्क शुगर डालते हैं कुछ लोग, नॉन अल्सर टैपियोका का ये प्रयोग कर देते हैं स्टार्च, और उसको 3 घंटे खरल करना, फिर उसमें से एक हिस्सा लेना, उसमें फिर 9 गुना ये डालना, फिर 3 घंटा खरल करना, इस प्रकार से 6x तक पहुंचना। अब ये कम से कम 1 लाख गुना हो जाता है, और उसमें ये मिलता नहीं है, मूल द्रव्य मिलता नहीं है। तो एक हिसाब से ये अच्छा है। रसशास्त्र की सभी दवाइयों को इस प्रकार से हम प्रयोग में ला सकते हैं, और फिर ये बड़ा अच्छा इस प्रकार का काम करता है। कुछ वैद्य एक सिंगल डोज के रूप में हीरक भस्म का प्रयोग करते हैं, एक ही डोज सुबह देते हैं 10 मिलीग्राम का, लेकिन 100 मिलीग्राम का अगर पैकेट मिलता है तो 10 ही डोज होंगे उसमें, और काफी महंगा हो जाता है, तो लोग प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं, ऐसा भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम 6x बनाएंगे तो ये पाबंदी इसमें नहीं रहती कि प्राइस ये नहीं रहेगी। अभी मैं हर रोज सुबह 6:30 से 7:30 तक इसी गो टू मीटिंग प्लेटफॉर्म पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन चरक संहिता, और बुध, गुरु शुक्र शनि 3 दिन दशरथ समीक्षे पढ़ रहा हूँ। ये हमारा सिलसिला सुश्रुत से शुरू हुआ था 10 बरस में। ऑनलाइन में मैं कब आ गया तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 8-9 बरस हो गए हैं। और फिर पहले एक बार सुश्रुत हुआ, फिर अष्टांग हृदय हुआ, संग्रह हुआ, फिर चरक हुआ। तो उस समय में हम यहाँ अंग्रेजी में इसका विवरण कर रहा था, और फिर बीच में सहस्र हुआ, माधव निदान बदकोष्टिका हुई पहले आते, और फिर से अभी ये रसरत्न समुच्चय 3 दिन और चरक संहिता 3 दिन, इस प्रकार का चल रहा है सिलसिला। पिछली दफा किया तो मैंने चक्रपाणी दत्त की टीका के साथ किया था। अब जहां जरूरत मुझे लगती है वहां मैं टीका पढ़ लेता हूँ, मैं तो मूल ग्रंथ पर भी भाष्य करता हूँ। तो विलोक भारतीय से संपर्क करेंगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा। तो जरूर इसमें ज्वाइन हो जाए, ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, और मेरी काफी किताबें छपी हुई है, छात्रों के लिए भी और आम जनता के लिए भी, सभी लोगों के लिए भी। तो उसमें से कैंसर के बारे में मराठी और अंग्रेजी में किताबें, कैंसर डिसीज और डायबिटीज ये अंग्रेजी में है, और कैंसर आयुर्वेदाचा सर्वांगीण दृष्टिकोन ये मराठी में, आयुर्वेदिक जीवनशैली आरोग्याची गुरु के लिए मराठी में है, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ ये अंग्रेजी में है, चलत्या बोलत्या शुगर फैक्टरीज ये किताब डायबिटीज के ऊपर है। और मेरे अमेरिका में खास करके इंटरनेट रेडियो जो है 4 नहीं, तो समझो बस
काफी मुलाकातें उस पर पब्लिश हुई है। वो अभी यूट्यूब पर सभी लोडेड है और उसके लिंक मैं भेज सकता हूँ, तो वो भी जरूर सुने इस प्रकार से। तो सर्वे सुखेन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कीरक भस्म का बहुत सारे तरीके से प्रयोग हम कर सकते हैं। एक आखिरी 5-10 मिनट में अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो मैं ओपन हूँ। चैट बॉक्स में सवाल लिखे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और फिर से विदा लेते हैं। हेलो, नमस्ते सर। हेलो। हाँ हाँ सर, नमस्ते। वैद्य अंशु मोये बात कर रही हूँ अहमदनगर से। हाँ सर, धातु पाचक हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये काफी दिनों से मेरे मन में सवाल है। तो ये सिर्फ धातु के अग्नि का वर्धन करते हैं या धातु की शुद्धि भी इसमें होती है धातु पाचक की वजह से? एक्चुअली ये ऐसा धातु जो कहना था उन धातुओं ऐसा अग्नि भी सर, आपकी आवाज, सर शायद रेंज का कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अगर अग्नि के ऊपर काम करना है तुम अपने को सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही है। उनका ये जो आवाज आ रही है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ये धातुओं में स्थित जो दोष है उनका पचन करती है, तो भी नहीं आवाज आ रही, सिर्फ तुम्हें। सर पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही है, बाकी वाले बताएं। सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो आवाज नहीं आ रही है सर। तुम सुन रहे हो? हाँ, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। अभी ये नहीं आ रही है। हाँ, साउंड इज ब्रेकिंग, आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज बीच एक बार मैं म्यूट और अनम्यूट करता हूँ। जी सर। ओके ओके ओके, आ रही है? मैडम एक बार अपना क्वेश्चन एक बार और रिपीट करें ताकि दोबारा आंसर हमें। हाँ सर, धातु पाचक जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ धात्वाग्नि का वर्धन करते हैं या धात्वाग्नि का शोधन भी करते हैं? आ रही है। अभी
चिन्मय फोंडेकर तुम बात करो. हेलो हेलो. ये चैट बॉक्स क्यों? हाँ सर. आवाज ब्रेक होतोय. चिन्मय सर का आवाज आ रहा है सर. मैंने जब दिया था धातु पसंद करता है कहना. अभी धातु वर्धन की भी बात हो सकती है लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके लिए सिद्ध गुरुत्व का प्रयोग ज्यादा अच्छा रहेगा. धातुवाचक सिद्ध गुरुत्व ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा. इतने का लेक्चर हेलो सर, थोड़ा ही सुनाई दिया, थोड़ा ब्रेक करते हुए, लेकिन जो सुनाई दिया शायद इसमें ये पता चला कि धातुपाचक का सिद्ध गुरुत्व करे तो ज्यादा उससे बेनिफिट हो जाता है. मेरा अगला सवाल है सर, सीकेडी में हम हीरक भस्म इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? लेकिन चिन्मय जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. हेलो. हाँ सर, पुन्हा जॉईन होत आहेत. ओके. हेलो. हेलो. येस, आवाज येतोय. सरांचं येतोय. आवाज येतोय. हाँ हेलो. मेरी आवाज आ रही आता है? हो, आता येतोय. विल डू वन थिंग. सर का कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आइदर मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स पे भेज सकते हैं या मुझे पर्सनल भेज सकते हैं. मैं सर से एक मतलब आंसर लेके या कुछ तो अरेंज करते हैं या कल अरेंज करते हैं क्वेश्चन के लिए. ओके.
Please drop your question here, either in chat box or my personal number. हेलो। हाँ उज्जवल जी बोलिए। आ गए? हाँ आगे लौटे क्या? हाँ आज सुबह पहुंचे हैं। अच्छा, चलिए तो अब MRI कराते हैं, करा के फिर आपके साथ चेकिंग करवाते हैं। और ये कह रहे थे कि वो बाल वाला तेल भेजा नहीं? Shall we end up with meeting? हाँ बाल वाला तेल तो कुरियर आया है। हाँ आया है। आया है? हाँ हाँ अच्छा, तो कैसे क्या है? ठीक है।